آج ایک بڑا اعتراض کیا جاتا کہ مولانا صاحب نے یہ کر دیا کہ وہ منتخبہ حدیث پڑھنے کہتے ہیں، حیات الصحابہ پڑھنے کہتے ہیں، فضائل کو اہمیت۔ بھائی دیکھیے، اس وقت تبلیغ پر انڈین رنگ غالب ہے۔ شروع میں جب کام چلا تھا، میوات میں تھا، دہلی اور اطراف میں تھا، تو ہمارے ہندوستان کا ایک مزاج ہے کہ ہم اور عربوں کا الگ مزاج ہے، دنیا کا ایک مشرق بعید کا الگ مزاج ہے، افریقہ کا الگ مزاج ہے، یورپ کا الگ مزاج ہے۔ تو کوئی مزاج کے تابع نہیں ہوتا دین۔ تو ہمارا ایک مزاج تھا، ہمیں کشف و کرامت میں، چھو منتر کے واقعات میں بڑا مزہ آتا، اس کے بغیر ہمارا دل ہی نہیں لگتا۔ عربوں کا ہے کہ ان کا قرآن حدیث ہے اور نبیوں اور صحابہ کے واقعات بس۔ تو جب عالمی کام بن گیا تو اس کو انڈین رنگ نہیں ہونا چاہیے، اس پر عالمی رنگ ہونا چاہیے۔ کئی باتیں فضائل میں ایسی ہیں۔ دیکھیے میں جو کہتا ہوں، ٹھیک ہے، ضعیف حدیثیں اکثر محدثین جائز قرار دیتے ہیں، خود امام بخاری ان سے بڑھ کر کون ہوگا؟ لیکن ان کی جو ادب المفرد جو کتاب ہے، اس میں تقریباً انتہائی ضعیف حدیثیں ہیں۔ فضائل میں موضوع کوئی حدیث نہیں ہے جو لوگ شور مچاتے ہیں، موضوع حدیث کوئی نہیں ہے، ہاں ضعیف حدیث ہیں اور سب کو نزدیک تقریباً یہ ہے۔ لیکن پھر بھی جب صحیح حدیث موجود ہیں تو ضعیف حدیث سے کیوں کام چلایا جائے؟ یہی وجہ کہ عربوں میں صرف فضائل تبلیغ کا ترجمہ اور 2-3 رسالوں کا، اس لیے کہ وہ فضائل صدقات، فضائل حج اور فضائل درود پہ بہت ساری ضعیف باتیں آ گئی ہیں جو آج دنیا میں خاص طور پر عربوں کا، یورپ کا، کئی حصوں کے لوگوں کا مزاج قبول نہیں کرتا۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یہ مجتہد فی تبلیغ تھے۔ بعد والے خود ہی کہتے ہیں بعد میں کہ ہم تو بھائی لکیر کے فقیر ہیں، ٹھیک ہے، ایک کہتا مجتہد، ایک مقلد۔ تو یہ نہیں کہ بعد میں کوئی مجتہد نہیں پیدا ہو سکتا، اگر مولانا صاحب میں قابلیت ہے اور وہ کوئی کر رہے ہیں ایک امیر کی حیثیت سے، تو کیا حرج ہے اس میں؟ ہے تو صحابت اصل کتاب ہے دین کی، پورا ایک دائی کی زندگی سامنے آ جائے گی۔ اور منتخب حدیث میں زیادہ تر صحیح حدیث ہیں، فضائل میں اکثر ضعیف حدیثیں ہیں۔ اب یہاں پر شیخ کے خلفاء ہیں، اب انہوں نے جب فضائل درود کو نکالا، انہوں نے وہ بیروت پر چھپائی، ہمارے یہاں کے شیخ کے جو خلیفہ انہوں نے 8 پیپر میں، ٹھیک ہے آپ چھپاؤ۔ ابھی میں نے دیکھا کہ شیخ زکریا کے مخطوبات، اتنے بڑے موٹی کتاب، بھائی وہ تو نجی خطوط ہیں، تیسرا آدمی کو اس سے کیا فائدہ؟ کوئی قرآن تو نہیں پڑھنے سے تو ثواب ملے گا؟ تو جو اگر مولانا صاحب ایک امیر کی حیثیت سے کہتے ہیں کہ اس وقت میں یہ کیا جائے تو حرج کیا اس میں؟ کیوں ہم اس پر جمے ہوئے ہیں؟ خود مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں مشکات کے چند ابواب پڑھے جاتے تھے، کچھ راز الصالحین کے چند ابواب پڑھے جاتے تھے۔ تو اگر وہ کہہ رہے ہیں تو ہمیں اس پر شور مچانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج شور اس پر مچا کہ مولانا صاحب نے یہ کہہ دیا، ٹھیک ہے، صحیح کہا انہوں نے، منتخب احادیث میں زیادہ تر صحیح احادیث ہیں اور فضائل کی کتابوں میں بہت سارے ضعیف احادیث، موضوع کوئی نہیں اس میں، لیکن ضعیف احادیث بھی ہیں۔ میرے اکثر استاد مجھے کہتے تھے، مولانا ابراہیم رسائی کا نام لیا، وہ مجھے خود بحث کرتے تھے اس پر کہ بھائی اتنی ضعیف حدیثیں کیوں ہیں اس میں؟ تو اس بات پر ہم اس کو ایک فتنہ کا ذریعہ نہ بنائیں، ٹھیک ہے، امیر کیسے اگر وہ کہتا ہے بات ماننی چاہیے، سمجھ میں آئے یا نہ آئے۔ امیر کے خلاف جو شور، واقعی یہ ہے کہ حضرت مولانا یوسف صاحب میں جب انتقال ہوا تو اس وقت میں کام کرنے کے جو بصیرت والے لوگ تھے، ہمارے فضل کریم بھائی اور کئی ایسے لوگ، کہنے لگے بس اللہ تعالیٰ کو شاید اس وقت منظور نہیں ہے کہ دنیا ہدایت پر پلٹا کھائے۔ حضرت جی مولانا صاحب نے جو روحانیت تھی، ایسا لگتا تھا کہ تبلیغ میں نکلنے والے کے ساتھ ایک روحانیت چل رہی ہے، ایک اللہ کی مدد چل رہی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ ملک اور قوم میں علاقے پلٹا کھائیں گے، ہدایت کی طرف تبدیلی آئے گی۔ لیکن مولانا صاحب کے بعد یہ توقع نہیں رہی کہ اب اس طرح پر عام تبدیلی آئے گی۔ ایک اچھا کام ہے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے، اس کا نفع غالب ہے، اور بہت سارے لوگ غلط راستوں سے بچ جاتے ہیں، گناہوں سے بچ جاتے ہیں، صحیح کی طرف آ جاتے ہیں، بچوں کو دینی تعلیم کی طرف لے آتے ہیں، حافظ اور عالم بناتے ہیں، خود ان کی زندگیاں اللہ کے ذکر میں صحیح ہو جاتی ہیں، غلط کو چھوڑ دیتے ہیں۔ لیکن اب جو اس وقت میں طوفان برپا ہے، اور بجائے اس کے کہ لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کریں، متوجہ کریں آخرت کی طرف، اعمال کی طرف، اس کے بجائے
आज इस पर मजलिसें हो रही हैं। वो लंबे लंबे फेसबुक भरा पड़ा है, रोजाना 2-4 घंटों की चीज आ जाती है। इसमें क्या है भाई? क्यों इसको इतना वो कितना बनाया जा रहा है? अगर मौलाना साहब ये कहते हैं और अपनी बसीरत के साथ कहते हैं, हमें मान लेना चाहिए। कोई गलत बात तो नहीं कह रहे हूं। और यहां पर वाकई ये है कि एक हयात साहब एक अरब का हाथ में, तो आधी तबलीग खुद ब खुद समझ में आ जाएगी उसे। मुंतखब अहादीस में बहुत अच्छी अहादीस हैं और ज्यादातर सही अहादीस हैं उसमें। तो इस चीज को कि हमारे फला बुजुर्ग, भाई ठीक है, बुजुर्गों ने किया, सही किया अपने वक्त पर, लेकिन आज के जो अमीर कह रहे हैं तो आज हमें उनकी बात माननी चाहिए और हमें इस चीज को तफरीका का और उम्मत में तोड़ का जरिया नहीं बनने देना चाहिए। और फिर मैं आखिर में ये बात अर्ज करूंगा कि हमें दावत के काम को ये समझकर कि अल्लाह का एक इनाम है और ये समझकर कि अल्लाह ने वाकई एक आगे काम ना, तो आज हम क्या करते, किस तरह लोगों के पास जाते, कैसे समझाते उनको? ये बहुत बड़ी नेमत है, इसमें डर कर चलना चाहिए। और अल्लाह ने अगर लगा दिया तो उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए। उस पर किब्र नहीं आना चाहिए कि हम बहुत ऊंचे हो गए, हम बड़ा काम कर रहे हैं। ये चीजें पैदा हो रही हैं और हम हरीफ बनते जा रहे हैं दीन के दूसरे शौबों के भी। हमें चाहिए कि इस वक्त में बस मेरी आजिज़ाना दरख्वास्त है कि ये जो बातें हो रही है, जो फेसबुक रोजाना, और ये बात है कि मौलाना साहब की तरफ से एक लफ्ज़ नहीं आया आज तक। ये दूसरा ग्रुप का सहारनपुर में जो लोग बैठे हुए हैं, बहुत सारे मुतअद्दिद सिका लोगों ने, जिम्मेदार लोगों ने मुझे कहा फला साहब है सहारनपुर में, उनकी तरफ से इशारा आ रहा है और वो उसकी सारी वो कर रहे हैं। तो हमें असल अपना मरकज जो है उससे ताल्लुक बाकी रहे, अपने अमीर से ताल्लुक बाकी रहे। और ये एक कब्जा ग्रुप ही कहता हूं मैं उसको, जो रायवन में जो कुछ हुआ है, अब्दुल वहाब साहब इस हालत में नहीं है अभी। अल्लाह ताला उनके दर्जात को, जी बहुत बड़ा काम उन्होंने किया दीन का, जिंदगी का। वो मामूली बात है 80-90 साल लगा देना, लेकिन इसका मतलब नहीं, गलतियां होती है, हर एक से होती है, बड़ों से गलती भी बड़ी होती है। मुझे पता है आज से तकरीबन 30 साल पहले की बात है, एक मौलवी रियाज थे वहां पर। अब उन्होंने ख्वाब सुनाना शुरू कर दिया हाजी साहब को कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख्वाब में आपको सलाम कहा। शेख अब्दुल कादिर जिलानी ख्वाब में उन्होंने ये कहा, सिद्दीक अकबर ने ये कहा। अब हाजी साहब को इस तरह पर वो लिया कि अब वो बातें हाजी साहब के बयानात में चलने लगी। यहां तक बात पहुंची कि जब मुंतखब अहादीस का वहां पर प्रूफ रीडिंग हो रही, नजरसानी हो रही थी कराची में, तो हाजी साहब कहने ये क्या वक्त ज़ाया कर रहे हैं मौलाना साहब। अरे भाई किसी हदीस के बारे में शक है तो ज़ियारत को कहते हैं हुजूर को पूछ कर बता देगा सही है कि गलत है, हदीस सही है कि ज़ईफ है। अब वो आदमी खतरनाक आदमी, और बाद में पता चला कि वो तो CIA का एजेंट था और उसको निकाला गया और अभी भी वहां पर वाशिंगटन में है, वो उन्हीं के घेरे में है CIA के लोगों में, और वो बयानात होने लगे थे बार बार। मैं देखता था हाजी साहब के इर्द गिर्द लोग हैं, मैं देखता था ये कौन लोग हैं, ये बड़े बड़े रिटायर्ड जनरल और रिटायर्ड डिप्टी कलेक्टर और फला है, ये तो CIA और ISI के लोग नजर आते थे। तो गलतियां बड़ों से बड़ी गलतियां होती हैं। इसलिए शरीयत में कोई भी शख्सियत जो है वो हर्फ आखिर नहीं है, वो मेयार नहीं है। इमाम मालिक ने पहले दिन कह दिया था ये साहिब कब्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनके सलवा सिवा हर एक की बात रद्द भी की जा सकती, कबूल भी की जा सकती। आज हाजी साहब इस हालत में नहीं है। ये खुदा का निजाम, एक आदमी उस उम्र में पहुंच जाता है, हवारी मवारी उस पर हावी हो जाते हैं। अभी मैंने कल सुना कि रायन में उनका तर्जुमा हो रहा है, उनकी बात का कि भाई ये आलम ईश्वर हमने बनाई थी और वो सही आई है। भाई ये बात अवाम में हाजी साहब कभी नहीं कर सकते थे। हमारे अकाबिर, हमारे बुजुर्ग हैं, बड़ा अल्लाह ने उनसे काम लिया है, लेकिन उनके चंद साल पहले जब अपने कुव्वत के साथ वो थे, उस वक्त की बात हमारे लिए हो जाता है। हजरत शेख के बारे में हमने कह दिया था 71 के बाद की बातें तुमने घेर के क्या कहलवाया क्या करवाया हम नहीं जानते।
कितने नूरानी लिबास में आते हैं। जब मौलवी साहब का इंतकाल हुआ, सूरत जिले में हम तमाम इज्तिमा था, 2-4 गुजराती खुलफा भी वहां पर आ गए। अब हमारे जो जिम्मेदार अकाबिर थे, सबसे बढ़कर काजी अब्दुल वहाब साहब, भाई फजल करीम, हाजी मूसा बाबर और सारे बैठे, भाई क्या ये बुजुर्ग आ गए, क्या किया जाए। मशवरा हुआ, सबने कहा देखिए इनके इकराम किया जाए, खिलाया जाए, ये किया जाए, लेकिन बयानात नहीं होंगे इनके, वरना कल एक मसला हमारे लिए पैदा हो जाएगा। तो काम, बेशक काम को काम वाले ही ज्यादा जो 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 जिस रास्ते पर चलेगा खुलेगा उस पर, लेकिन इकराम किया जाए। अब इकराम भी ना किया जाए। मुझे पता है इस मुल्क में जब मैं मरकज के इमाम था, हजरत मौला अली मियां तशरीफ लाए, हमने बयान करवाया और अचानक ही हम बयान रख देते थे। ये वो आदमी है कि मौला इलियास रहमतुल्लाह के खुतूत पढ़ो, उनका नाम मालूम होता कि मौला इलियास रहमतुल्लाह मुरीद और मौलाना अली मियां उनके शेख है जो अलकाब और आदम है। उनको छोड़ने के लिए आधा मील पैदल जा रहे हैं मौला इलियास रहमतुल्लाह। शेख अब्दुल हलीम महमूद, बहुत बड़ी इस सदी में शायद ऐसा अल्लाह वाला असर को शेख नहीं मिला होगा, जाकिर और शागिल, हर वक्त अल्लाह की याद में, बहुत ही वली सिफत आदमी। जब यहाँ पर आए वो 76 में, मैं मुख्तलिफ जगहों में तर्जुमान रहा, मैंने जुमात के इज्तिमा में बयान करवाया उनका, बड़ी कीमती बात उन्होंने की। हजरत मौलाना मुफ्ती महमूद पाकिस्तान के बहुत बड़े आलिम और बहुत बड़े लीडर भी, हमने जुमरात के इज्तिमा में बयान कराया। भाई जो उलमा हमारे काम को बहुत, और उन्होंने तबलीगी बयान किया, दावत की बात की। हजरत मौलाना असद मदनी आए, पहला साल था मेरा 75, पहला इज्तिमा था 1 महीने के बाद गलासगो में। अब मशवरा हो रहा, मैंने अर्ज किया कि भाई मौलाना बहुत अच्छी बात करते हैं, जची तुली, फजाइल जिक्र पर मखसर बात, चंद मिनट बात हो जाए उनकी। अब यहाँ के जिम्मेदारों में कहते कांग्रेसी आदमी है, एक कहते इंदिरा गांधी के आदमी है। मैंने कहा भाई मौलाना हिफ्ज़ुर रहमान से बढ़कर कौन कांग्रेसी होगा। हाँ, लेकिन मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह भोपाल का एक सबसे बड़ा इज्तिमा, आलमी इज्तिमा, जब से तकरीबन 50 साल से 60 साल से चल रहा है, और सबसे बड़ा इज्तिमा वस्त हिंद में सबसे बड़ा होता। जब तक वो जिंदा रहे मौलाना साहब उनके भोपाल के इज्तिमा में बयान करवाते थे। तो इस तरह पर यानी अपने लोगों के साथ, मैं तो जब तक था अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों के बयानात होते थे और उससे फायदा होता था, लोगों को होता था, वो भी तबलीग की बात करते थे। लेकिन हमें ये करना कि नहीं, ये तो बड़े लोग हैं, किसी आलिम का भी नहीं हो। अब रायमंड जैसे इज्तिमा में जो बयानात हो रहे हैं, जिस सतह के लोगों को, इनकी अपनी क्या हैसियत है, चाहे मौलाना अहमद लाट हो, चाहे फारूक बेंगलोर वाले हों, चाहे मौलाना अब्दुल रहमान रवि, क्या इनकी अपनी, क्या इनका क्या इल्मी मकाम है, क्या इल्मी और तहकीकी मकाम है, क्या इनका काम है तबलीग की वजह से। तो इसका मतलब है कि दूसरे उलमा की कदर ही ना की जाए। यहां पर भी हमारे जो बड़े मराकिज़ है रीस भरी का, उसमें कम से कम जुमरा के दिन साहिब इल्म लोग बोले, कुरान हदीस की रोशनी में बोले, बसीरत के साथ बोले। अब एक गलत तरीका चल पड़ा है कि बस ये चिल्ला लगा दिया और बयान करेगा। एक आम आदमी कैसे कि जोहला की जमात हो गई मशहूर, लोग मुझे कहते हैं भाई, मैं क्या भाई मेरा इनसे कोई ताल्लुक, वाकतन मैंने आने के बाद फैसला कर लिया, कोई ऐसी बात आती भाई मैं इनसे काफी दूर हूं। कब तक जवाब देते फिरेंगे? जवाब देना। हमारे गुजरात में पुराने जो काजी अब्दुल वहाब रहमतुल्लाह अलैह, हाजी मूसा बाबर रहमतुल्लाह अलैह सब मानते थे उलमा के एहसानात, तो कि मुफ्ती अब्दुल रहीम लाजपुरी का बड़ा एहसान है। तबलीग के बारे में बड़े फतावे समझा कर लोगों को, तफसीली फतावे, वो भी कहते हुए दुनिया से गए, इसमें हम अकबर अमीर नाफे ही ये कहते हुए तबलीग के बारे में कि अब इसमें गलतियां ज्यादा हो रही हैं। ये मुफ्ती खानपुरी अभी बड़े हमारे दोस्त हैं, साथी हैं, मुझे कह रहे मौलाना क्या करें, ऐसी हरकतें करते हैं, ऐसी बातें करते हैं, कब तक इनका दिफा करें हम लोग, कहां तक करें। तो उलमा के साथ ताल्लुक हो, मशाइख के साथ ताल्लुक हो, दिखावे का ना हो, और ना ये हो कि हम अपने कारनामे उनको सुनाया जाएगा जैसे आज ये तबलीग वाले करते हैं। हाँ, हमें चाहिए कि उलमा के पास इनके इल्मी बातें सुने।